یہ برات بہت ہی برکت اور عظمت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں گنہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعا قبول ہونے اور رزق تقسیم ہونے، روزی ملنے کی رات ہے۔ اس رات جو بھی رزق میں، روزی میں برکت کی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کی اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، ویسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں۔ نمبر 1 شب برات، نمبر 2 شب قدر۔ میرے دوستو، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت، لاپرواہی کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی رات جاگ کر عبادت میں گزاری، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر، نمبر 5 نصف شعبان کی رات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، جیسے آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، سب کچھ فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، کیسی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے یہاں لوگ جہنم کی آگ سے آزادی کی اس رات آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بہت سے گناہوں بھرے کام کرتے ہیں۔ شب برات خصوصیت کے ساتھ عبادت کی رات ہے، اس لیے اس بابرکت رات میں گناہوں سے بچ کر عبادت میں لگے رہنا ہی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، نزول الرحمہ یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 5 اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 14ویں رات سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔
मेरे दोस्तों, शब बारात बहुत नाजुक रात है। अल्लाह पाक ने फरमाया, तर्जुमा, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। पारा 25 सूरह दुखान आयत 4। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब निस्फ़े शाबान की रात यानी शब बारात आती है तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक सहीफा, एक लिस्ट दिया जाता है और हुक्म होता है, इसमें जिनके नाम लिखे हैं उनकी रूह इस साल कब्ज कर लेना। मेरे दोस्तों, आदमी शादी ब्याह में मसरूफ होता है, घर की तामीर और तरक्की में लगा होता है, जबकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त, मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। दोस्तों, शब बारात की रात हमारे अच्छे और बुरे कामों का लेखा जोखा बदला जाता है। लिहाजा इस रात की बरकतें लूटने और मग़फ़िरत व बख्शिश की खैरात पाने के लिए बेहतर है कि शब बारात आने से पहले पहले ये 3 काम जरूर कर लिए जाएं। नंबर 1, तौबा कर लीजिए। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म की शाम सूरज डूबने के वक्त चूंकि पिछले साल का अमाल नामा लपेट दिया जाता है, इसलिए बेहतर है कि शब बारात आने से पहले पहले तौबा कर ली जाए। हदीस पाक में है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। तौबा करने के बहुत फायदे हैं, उनमें से एक बेहतरीन फायदा यह है कि अल्लाह पाक चाहे तो तौबा की बरकत से गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। पारा 19 सूरह फुरकान आयत 70 में इरशाद होता है, तर्जुमा, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ जो बंदा सच्ची तौबा करे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान रखे और तौबा के बाद गुनाहों की तरफ वापस न लौटे बल्कि नेकियां करे, अल्लाह पाक को राजी करने वाले कामों में लगा रहे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। गैब बताने वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत एक शख्स बारगाहे इलाही में पेश किया जाएगा। हुक्म होगा, इसके सगीरा छोटे गुनाह इस पर पेश करो। चुनांचे एक एक करके उसके गुनाह पेश किए जाएंगे। वो हर गुनाह का इकरार करता जाएगा और डरता होगा कि अभी कबीरा बड़े गुनाहों की बारी आनी है। इतने में हुक्म होगा, तेरे हर गुनाह की जगह एक नेकी है। अब वो पुकारेगा, मौला अभी तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ये कि पहले तो डर रहा होगा कि गुनाहों पर पकड़ होगी, मगर जब अल्लाह पाक की रहमत देखेगा कि गुनाह नेकियों में बदल रहे हैं तो चाहेगा कि मेरे सारे गुनाह नेकियों में बदल जाएं। इसलिए वो पुकारेगा, मौला अभी बड़े बड़े गुनाहों का तो जिक्र ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। हमारे रब्बे करीम की बेपनाह रहमतों की भी क्या शान है। शब बारात आने से पहले पहले हम सच्ची तौबा करने में कामयाब हो जाएं और पिछले साल का आमाल नामा लपेटा जाए तो उसमें एक भी गुनाह बाकी ना हो। सच्ची तौबा की बरकत से सब गुनाह मिट जाएं, बल्कि ज़हे नसीब गुनाह नेकियों में बदल जाएं, तब तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। ख्याल रहे, हमारे यहाँ तौबा को बहुत हल्का लिया जाता है। कुछ लोग गाल पर हल्की सी चपत मार कर कह देते हैं, तौबा तौबा। कुछ नाक और कानों को हाथ लगाते हैं। कुछ लोग अपनी ज़बान दांतों तले दबाकर 2-4 बार तौबा तौबा कह देते हैं। ये तौबा नहीं है। सच्ची तौबा के 3 रुकन हैं। नंबर 1, गुनाह पर इसलिए शर्मिंदा होना कि वो अल्लाह पाक की नाफरमानी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सूदी कारोबार कर लिया और सूदी लेने देने पर शर्मिंदगी की बहुत सी वजहें हो सकती हैं। किसी को सूदी लेन देन में नुकसान पहुंच गया इसलिए शर्मिंदा हो रहा है। सूदी लेन देन की वजह से घर वाले या दोस्त रिश्तेदार नाराज हैं इसलिए शर्मिंदगी हो रही है। ऐसी शर्मिंदगी तौबा के लिए काफी नहीं है, बल्कि तौबा के लिए जरूरी है कि सूद को अल्लाह पाक की नाफरमानी समझकर अल्लाह पाक के अजाब से डरते हुए शर्मिंदा हो। नंबर 2, दूसरा रुकन ये है कि बंदा उस गुनाह को फौरन छोड़ दे। ऐसा ना हो कि गुनाह भी कर रहा है और तौबा भी किए जा रहा है। ये तौबा नहीं बल्कि माज़अल्लाह मजाक है। नंबर 3, सच्ची तौबा का तीसरा रुकन ये है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले। ये तीनों रुकन पूरे होंगे तो इसे सच्ची तौबा कहा जाएगा। नंबर 2, दूसरों से माफी मांग लीजिए। दूसरा अहम तरीन काम यह है
कि शब बारात आने से पहले पहले बंदों के हुकूक, राइट्स माफ करवा लिए जाएं। ये भी तौबा ही का एक हिस्सा है। अगर किसी का हक मारा हो, जब तक उससे माफी ना करवा लें उस वक्त तक वो हक तलफी माफ नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि शब बारात आने से पहले पहले अपने हर जानने वाले से एहतियातन माफी तलाफी कर ली जाए, ताकि जाने अनजाने में कभी किसी के दिल आजारी हुई हो, किसी को तकलीफ पहुंचा दी हो तो उसकी माफी हो जाए। हमारे यहाँ शब बारात से पहले व्हाट्सएप वगैरह पर एक मैसेज चलता है जिसमें दूसरों से माफी की दरखास्त होती है। ये अच्छा तरीका है, मगर एक मैसेज को 200 या 400 लोगों की तरफ फॉरवर्ड कर देना माफी के लिए काफी नहीं है। बेहतर यह है कि जिनसे मिल सकते हैं उनसे मिलकर, जिन्हें फोन कर सकते हैं उन्हें फोन करके, और जिन तक रसाई नहीं उनसे बाकायदा सौती या तहरीरी पैगाम, वॉइस और टेक्स्ट मैसेज अपनी तरफ से रिकॉर्ड करके या लिख कर भेजा जाए, ताकि सामने वाले को लगे कि वाकई संजीदगी के साथ मुझसे माफी मांगी जा रही है। और जिनसे माफी मांगी जाए उन्हें भी चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों को माफ करके सवाब कमाएं। नंबर 3, दिल से बुग़्ज़ व कीना निकाल दीजिए। मेरे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जो बदनसीब शब बारात जैसी अजीम रात में भी मगफिरत से महरूम रहते हैं, उनमें एक बुग़्ज़ व कीना रखने वाला भी है। यकीनन हम में से हर एक मगफिरत व बख्शिश का तलबगार और हाजतमंद है। इसलिए शब बारात आने से पहले पहले इन तमाम गुनाहों से तौबा के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपना दिल साफ कर लें। दिल में किसी का बुग़्ज़ व कीना यानी छुपी दुश्मनी, किसी के मुतालिक हसद, किसी के लिए मैल न रहे। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे, मगर वो जो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ सलामत दिल लेकर। पारा 19 सूरा शोरा आयत 88-89। मालूम हुआ क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। क़यामत के दिन क़ल्ब सलीम काम आएगा। क़ल्ब सलीम क्या है? वो दिल जो कुफ्र और शिर्क से पाक हो, जिस दिल में बदअकीदगी ना हो, वो दिल जो बातिनी बीमारियों से पाक हो, जिसमें हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, दुनिया की मोहब्बत ना हो। ऐसे पाकीज़ा दिल वाला रोज़ क़यामत कामयाब होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे आका नूर वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, लोगों में अफजल कौन है? फरमाया, हर वो बंदा जो मखमूमुल क़ल्ब है और सच्ची ज़बान वाला है। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सुदूकुल लिसान यानी सच्ची ज़बान वाला किसे कहते हैं? ये तो हम जानते हैं, मखमूमुल क़ल्ब कौन है? फरमाया, वो मुत्तकी शख्स जिस पर कोई गुनाह ना हो, उसके दिल में ना सरकशी हो, ना कीना हो, ना ही हसद हो। मालूम हुआ जिसकी ज़बान सच्ची हो, झूठ ना बोले, और जिसके दिल में ना सरकशी हो, ना कीना हो, ना बुग़्ज़ हो, ना हसद जलन हो, वो बंदा बड़ी फजीलत वाला है। सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम मालिक जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अभी तुम्हारे पास इस रास्ते से एक जन्नती आदमी आएगा। चुनांचे एक अंसारी सहाबी वहां से आए। उनकी दाढ़ी वुजू के पानी से तर थी, उल्टे हाथ में जूता उठा रखा था और चले आ रहे थे। दूसरे दिन फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास इस रास्ते से एक जन्नती आदमी आएगा। दूसरे दिन भी वही सहाबी आए। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब मैं उन अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचा और दरखास्त की कि मैं आपके यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ। चुनांचे मैं 3 रातें उनके पास रहा। इस दौरान मैंने उन्हें रात को क़याम यानी नवाफिल की कसरत करते हुए नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर था कि जब वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलते तो जिक्रुल्लाह करते थे। एक अच्छी आदत उनकी ये भी थी कि वो अच्छी बात कहते या खामोश रहा करते। जब 3 रातें गुजर गईं तो मैंने उन्हें असल बात बताई कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने
3 दिन लगातार जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई और तीनों दिन इस बशारत के मुस्तहिक आप ही हुए। मैं चाहता था कि आपके पास रहकर आपका अमल देखूं, लेकिन मुझे तो आपका कोई ज्यादा अमल दिखाई नहीं दिया। उन सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा अमल तो वही है जो आप देख चुके हैं, अलबत्ता एक अमल और है, वो ये कि मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं रखता और न किसी मुसलमान को मिलने वाली नेमत पर हसद करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, यही वो वस्फ, यही वो क्वालिटी है जिसने आपको इस मकाम तक पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह। ए आशिकान रसूल, देखा आपने, दिल को पाक रखना, दिल में किसी का बुग़्ज़ कीना ना आने देना, किसी से हसद न रखना, किसी के मुतालिक दिल में मैल न रखना जन्नत में ले जाने वाला अमल है। और दूसरी जानिब गौर कीजिए कि दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, हसद का सांप दिल में पालने वाला कैसा बदबख्त है कि शब बारात को भी बख्शिश व मग़फ़िरत से महरूम रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि शब बारात आने से पहले पहले अपने दिल साफ कर लें। अगर किसी के मुतालिक दिल में कुछ मैल है तो उसे निकाल बाहर फेंकें, किसी से नाराजगी है तो दूर कर लें, किसी रिश्तेदार के साथ रंजिश चल रही है, किसी भी दुनियावी मसले की बिना पर लड़ाई है, आपस में दूरियां हैं तो उन्हें मिटा दें। ताजदार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो बातिल पर हो और झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के कोने में घर बनाएगा, और जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के ऊपर वाले दर्जे में घर बनाएगा। दोस्तों, शब बारात में पढ़े जाने वाले चंद नवाफिल, मगरिब के बाद 6 नवाफिल। औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम के मालूमात से है कि मगरिब के फर्ज व सुन्नत वगैरह के बाद 6 रकात नफिल 2-2 रकात करके अदा किए जाएं। पहली 2 रकातों से पहले ये नियत कीजिए, या अल्लाह पाक, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। दूसरी रकातों से पहले ये नियत कीजिए, या अल्लाह पाक, इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकातों के लिए ये नियत कीजिए, या अल्लाह पाक, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। इन 6 रकातों में सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं, चाहे तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए। हर 2 रकात के बाद 21 बार कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरह या 1 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ लीजिए, बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिए। ये भी हो सकता है कि कोई एक इस्लामी भाई बुलंद आवाज से सूरह यासीन पढ़ें और दूसरे खामोशी से खूब कान लगाकर सुने। इसमें ये ख्याल रहे कि सुनने वाला इस दौरान ज़बान से सूरह यासीन शरीफ बल्कि कुछ भी न पढ़े। और ये मसला खूब याद रखिए कि जब कुरान करीम बुलंद आवाज से पढ़ा जाए तो जो लोग सुनने के लिए हाजिर हैं उन पर फर्ज आइन है कि चुपचाप खूब कान लगाकर सुने। इंशाअल्लाहुल करीम रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। हर बार सूरह यासीन के बाद दुआए निस्फ़े शाबान भी पढ़िए। मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शब बारात थी, मैंने देखा प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 14 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बैठ गए और 14 मरतबा सूरह फातिहा, 14 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद और 14 मरतबा सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 14 मरतबा सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी और आखिर में इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। पारा 11 सूरह तौबा आयत 128। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए उनमें से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान। मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फारिग हुए तो मैंने इस बारे में पूछा तो फरमाया, ए अली, जो इस तरह अमल करे जैसा तुमने देखा तो उसके लिए 20 मकबूल हज और 20 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब लिखा जाएगा। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कोई शब बारात में 100 रकात नफिल पढ़े, अल्लाह पाक उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा।
30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत खुशखबरी देंगे, 30 फरिश्ते उसे अजाब से बचाएंगे, 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफात से दूर करेंगे और बाकी 10 फरिश्ते उसे शैतान के मकरो फरेब से बचाएंगे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन दीरीन रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं 100 नवाफिल के मुतालिक फरमाते हैं, अल्लाह पाक के नेक बंदे शब बरात में 100 रकात नमाज इस तरह अदा करते थे कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे 30 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हदीस बयान फरमाई कि जिसने ये नमाज पढ़ी अल्लाह पाक उसकी तरफ 70 मरतबा निगाह करम फरमाता है और हर निगाह करम के बदले उसकी 70 हाजतें पूरी करता है। उनमें से एक हाजत यह है कि उस बंदे की मगफिरत हो जाती है। सलातुत तस्बीह भी पढ़ लीजिए। हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेहतर यह है कि शब बरात में सलातुत तस्बीह भी अदा की जाए। सलातुत तस्बीह बहुत फजीलत वाली नमाज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक में है, सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलातुत तस्बीह सिखाई और फरमाया, चचा जान अगर आप रोजाना ये नमाज अदा कर सकें तो जरूर करें, अगर हर रोज ना हो सके तो हर जुमा को, ऐसा भी ना कर पाए तो हर महीने, ये भी ना हो सके तो साल में एक मर्तबा, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो जिंदगी में एक बार जरूर सलातुत तस्बीह अदा करें। तो मेरे दोस्तों, ये थी शब बारात की मुकम्मल जानकारी।